A very good morning to all my dear students. My name is Shweta and today I am going to post my second video on chapter number 16, Local Self-Government in Social Science. In last video, we studied about the meaning of local self-government. We understood the two types of local government, that is Panchayati Raj. We covered the village administration, which is divided into three parts: village, taluka, and district. We understood their formation, administration, sources of income, and their functions. What the rules are, what are their roles and responsibilities. Okay, so now today we are going to start with the second half of the chapter. That is, today we will be learning about the city panchayat or city administration, that is municipality and corporation. So I am going to tell you the important points, so be ready with your, when you watch this video, I want all of you to sit with your textbook and mark the important points. Fine. And later I will be discussing the questions and answers and other exercises. So it will be easy for us to understand the concept of local self-government. So let's start. Urban administration. There is a municipality in the cities having the population of 1 lakh or more, and corporation in the cities having the population of 5 lakhs or more than that. And both of these are known as organization of local self-government. So any city which is having population of 5 lakhs or more is considered to be having the local self-government, as the corporation should be there. Okay, now corporation. What is a corporation? So corporation in the cities are generally having population up to 25,000 or more, and minimum number of candidates in each corporation is 28. Fine. Now we'll understand how the corporation is formed. So areas of municipality are divided into various wards on the basis of population. One ward consists of 4 members. Now this is really important. You need to mark it down and write it down in your notebook in good handwriting. एरियाज ऑफ म्यूनिसिपालिटी. म्यूनिसिपालिटी के जो एरिया होते हैं वो किस में डिवाइड होते हैं? 4 भाग में डिवाइड किए जाते हैं. पहला भाग होता है, ओके विल रीड दैट लेटर ऑन. ओके, सो ये जो म्यूनिसिपालिटी होती है इसके बहुत सारे वार्ड्स बनाए जाते हैं और हर वार्ड में मिनिमम 4 मेंबर होते हैं. 50% ऑफ देम आर रिजर्व फॉर वुमेन मेंबर्स. अब ये जो सीट्स होती हैं इनमें से 50% सीट्स के लिए रिजर्व की जाती है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए. फाइन. प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स. अब जो मेंबर्स को हम इलेक्ट करके लेकर आए हैं वो फिर बाद में किसका चुनाव करेंगे, चयन करेंगे? प्रेसिडेंट का एंड वाइस प्रेसिडेंट का. ठीक है. द president is the head. Underline this sentence. The president is the head of the school members. Sorry, the president is the head of the elected members. ठीक है, वो elected members का president होता है. His or her tenure is of 2.5 years. ये जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आता है ये कितने साल रूल करता है? 2.5 years के लिए रूल करता है. ही इज़ चेयरमैन ऑफ द कॉरपोरेशन और वही प्रेसिडेंट चेयरमैन कहलाता है कॉरपोरेशन का. ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे इसका, जिसमें है वी विल लर्न अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द फंक्शंस ऑफ कॉरपोरेशन. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ
कॉरपोरेशन, ठीक है। वेरियस कमिटीज़ आर फॉर्म्ड फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स। अब बहुत सारी कमिटीज़ बनती है जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनमें से, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कमेटी, फाइनेंस कमेटी, हेल्थ एंड हाइजीन कमेटी। जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव कमेटी बनती है जो एजुकेशन रिलेटेड पर्सपेक्टिव को देखती है, ठीक है। फाइनेंस कमेटी बनती है जो बजट एंड फाइनेंस को देखती है। हेल्थ और हाइजीन कमेटी बनती है, कंस्ट्रक्शन कमेटी बनती है, और ऐसे कई दूसरी कमेटियाँ भी बनती हैं, ठीक है। और ये कमेटी these committees are constituted as per the requirement। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होता है उस एरिया का या उस सिटी का, वैसे वैसे कमिटीज़ बनती जाती है। द हेड ऑफ म्यूनिसिपैलिटी इज़ कंसिडर्ड एज द चीफ ऑफिसर। जो म्यूनिसिपैलिटी का हेड होता है वो चीफ ऑफिसर काउंट किया जाता है। उसके कुछ रूल्स दिए हुए हैं, ठीक है, उसके कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, और ये ऑफिसर को अपॉइंट कैसे किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू उसे अपॉइंटमेंट मिलता है। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड अबाउट द फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल। वाटर सप्लाई मैनेजमेंट, रोड मैनेजमेंट, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर और सैनिटाइजेशन system, registration of birth, death and marriages, town planning and education management, fire extinguisher, actions against the sales of inedible items, providing facilities of garden and libraries, construction and cultural buildings और auditoriums। ये सारे functions किसके हैं, म्यूनिसिपैलिटी के हैं, ठीक है। Corporations. Number of members in corporation is decided on the basis of population. Again, corporation में जो members select किए जाते हैं that depends upon the population of that city. Members of corporation are known as councillor और corporator. जो members elect होते हैं corporation में उन्हें councillor कहा जाता है या फिर corporator कहा जाता है। The head of corporation is called द मेयर। ये हेड जो होता है, जो कि कॉरपोरेशन का हेड कहलाता है, ये क्या कहलाता है एक्चुअली, मेयर। देयर आर 8 कॉरपोरेशंस इन गुजरात। गुजरात में करीब 8 कॉरपोरेशंस हैं, ठीक है। कॉम्पोजिशन, द म्यूनिसिपैलिटी इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट वार्ड्स। अगेन म्यूनिसिपैलिटी को ही डिवाइड किया जाता है इंटू डिफरेंट वार्ड्स और sections. A ward is the area having population up to 75,000. वार्ड कैसे इस्टेब्लिश होता है, जब किसी एरिया में 75,000 से लोग रहते हों तो वहाँ के ऑफिसर, म्यूनिसिपैलिटी ऑफिसर जो ऑफिस होता है वो क्या कहलाता है, वार्ड कहलाता है, ठीक है। जैसे संतभाई माता रोड पर देयर इज़ वार्ड 4, सो दैट वार्ड, वहाँ पे जो वार्ड है, ठीक है, उसका जो हेड है वो कौन कहलाएगा, हेड ऑफ द वार्ड इज कॉल्ड द मेयर। फाइन। नाउ आउट ऑफ देम 50% आर रिजर्व फॉर फीमेल मेंबर्स। अभी एक चीज़ याद रखो, जितने भी वार्ड ऑफिसेस या हमने अभी तक जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में पढ़ा, उन सब में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ रिजर्वेशन फॉर फीमेल्स, ठीक है। और कितना परसेंटेज है, 50% है, सब जगह 50% है। फाइन। सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज कि 52 है कि 49 है, नहीं, 50% मीन्स 50%, चाहे कैसा भी इलेक्शन हो। फाइन। अभी 50% जो रिजर्वेशन है दैट इज़ डन फॉर फीमेल्स। ऑल वोटर्स इन द सिटी कैन वोट इन पोल्स एंड इलेक्ट देयर own local corporator. Members elected from different wards select the mayor through majority. मेयर को कैसे सिलेक्ट किया जाता है,
जो अलग अलग कॉरपोरेशन में जॉब करते हैं, ठीक है, मेंबर्स इलेक्ट किए गए हैं, वो सारे मिलके मेयर को इलेक्ट करते हैं थ्रू मेजॉरिटी ऑफ देयर वोट्स. द मेयर होल्ड्स हिज और हर पोस्ट फॉर 2.5 years. अगेन कॉरपोरेशन में भी मेयर जो होता है उसका वर्किंग टेन्योर कितने साल का होता है? 2.5 years का होता है. वेरियस कमिटीज़ एडमिनिस्ट्रेशन में वेरियस कमिटीज़ आर फॉर्म्ड फ्रॉम इलेक्टेड मेंबर्स among which standing committee is the most important. ठीक है. द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी इज कंसिडर्ड एज म्यूनिसिपल कमिश्नर. ही इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. अब इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? फंक्शंस में है कि टू मेंटेन द पब्लिक हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन, उसका मेंटेनेंस, प्रोविजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर, ड्रेनेज सिस्टम दैट इज सीवेजेस, cleanliness and disposal of garbage, construction and maintenance of roads, arrangement of street lights, arrangement of primary education, construction of libraries, playgrounds and gardens, control adulteration in the edible items, registration of birth, death and marriages. Fine, so this was all about the corporations. Collector is an administrative head of the district. Besides being collector, he or she works as a district magistrate and district election officer. Candidates are selected through UPSC, Union Public Service Commission, or through promotion. State government appoints him or her. अभी जो कलेक्टर होता है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है डिस्ट्रिक्ट का. ये जो ही या शी जो भी इलेक्ट होकर आती है दैट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर. ये कैंडिडेट्स कहाँ से चूज़ किए जाते हैं? आफ्टर गिविंग यूपीएससी एग्ज़ाम्स या थ्रू प्रमोशन इनको इलेक्ट किया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है. ठीक है. He or she maintains the administrative system in the district. It is collector's duty to ensure that there is no shortage of essential commodities in the district. ये जो मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो सिलेक्ट होकर आते हैं यूपीएससी के थ्रू, जिनको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, उनका मेन ये की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया क्या है? टू मेंटेन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द डिस्ट्रिक्ट. और उनकी ड्यूटी क्या होती है? ये इंश्योर करना कि कोई भी एसेंशियल आइटम्स की या कमोडिटीज़ की डिस्ट्रिक्ट में शॉर्टेज ना हो पाए. रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पंचायती राज. He or she coordinates and manages the works of all departments at the district level. Collector is the secretary of district planning committee, which is responsible for the development of entire district. It determines the number of members of the gram panchayat, allots the reserved seats in the gram panchayat. अब इनका जो काम होता है वो इलेक्शन का भी होता है, ठीक है, सेक्रेटरी को अपॉइंट करने का भी होता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कोऑर्डिनेशन और मैनेजिंग होता है वो भी इनका ही काम होता है. तो पंचायत राज में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं, जिसको भी अपॉइंट किया जाता है, वो सबको मॉनिटर करता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ओके, या फिर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर. He determines to reserve the position of sarpanch for the scheduled caste, scheduled tribe and socially and educationally backward class and women. इनका और एक काम क्या होता है? ये निश्चित करता है कि जो पोजीशन है सरपंच की वो बनी रहे और जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या सोशली
और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है या वुमेन है, उनका भी वो जो रिजर्वेशन उनके नाम पे किए जाएँ। 50% सीट्स है तो 50% सीट्स ही अलॉट होनी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। तो ये चीज़ को मॉनिटर करता है कौन? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। फाइन। अब नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट मामलातदार। ठीक है, अब ये मामलातदार क्या होता है वो हम समझेंगे। मामलातदार इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ तालुका लेवल। मामलातदार जो होता है वो तालुका का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कहलाता है। ही और शी सिलेक्शन इज़ डन। ही और शी का सिलेक्शन कैसे होता है? थ्रू द एग्जामिनेशन और प्रमोशन कंडक्टेड बाय द स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन, दैट इज़ कॉल्ड एज GPSC। ओके, GPSC का मतलब फुल फॉर्म होता है गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन। फाइन। अगर ये ही सेम चीज़ महाराष्ट्र का होगा तो MPSC हो जाएगा या MHPSC हो जाएगा। फाइन। मामलतदार इज़ अ रेवेन्यू हेड ऑफ तालुका which is made up of average group of 50 villages or more। जो मामलतदार होता है ये क्या करता है? वो एक रेवेन्यू हेड होता है तालुका का। और ये कैसे बनता है मामलतदार? 50% विलेजेस या 50 विलेजेस से ज़्यादा का जो ग्रुप होता है उससे बनता है मामलतदार। ठीक है। एज एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द कलेक्टर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ये डायरेक्टली किसको रिस्पॉन्स करता है? जो कलेक्टर होता है उसको करता है। ठीक है, उसको। और ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन भी करता है। मामलतदार प्रिपेयर्स वोटर्स लिस्ट फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इनका और एक काम होता है मामलतदार का, ये लिस्ट प्रिपेयर करते हैं उन वोटर्स की जो कि इलेक्शन जो होता है सेल्फ गवर्नमेंट का, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हों। Conducts election, provides various types of certificates, manages and controls the midday meals, relief operations at the time of natural disaster. So these are all the duties and responsibilities of Mamlatdar. Okay, now we will understand about the Lok Adalats. Lok Adalats have been established with a view to imparting justice to the poor, socially backward people. अब जो लोक अदालत होती है वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि उन लोगों को जस्टिस मिले, जैसे कि गरीबों को, जो सोशली बैकवर्ड पीपल हैं उनको, और जो विक्टिम्स होते हैं नेचुरल डिज़ास्टर के, जैसे अर्थक्वेक आया तो उसमें जो विक्टिम्स हुए, जिनका माली हालत जिनकी ख़राब हो गई, जिनका घर गिर गया, उन सबको जस्टिस मिले, ये लोक अदालत देखता है। ठीक है। इसके अलावा पीपल हैविंग लो इनकम, जिसकी बहुत कम इनकम है, उनको भी जस्टिस मिलना चाहिए। ये चीज़ कौन देखता है? लोक अदालत। सो दैट दे आर नॉट डिप्राइव फ्रॉम जस्टिस व्हेन बोथ द पार्टीज अग्री दे आर कॉल्ड लोक अदालत। जब दोनों पार्टी अग्री करती हैं तो वो कहलाता है लोक अदालत। लोक अदालत्स आर द बेस्ट ऑप्शन टू सॉल्व डिस्प्यूट्स। लॉन्ग टर्म केसेस आर डिस्पोज्ड in such a way that no one loses और no one wins। जो लंबे लंबे केस चलते हैं ना, कई सालों तक जो चलते रहते हैं, उनको इस तरीके से ख़त्म किया जाता है कि ना ही कोई जीत पाता है और ना ही कोई हार पाता है। ठीक है। नो एक्सपेंस इज़ देयर टू फाइल अ केस इन इट। लोक अदालत में केस फाइल करने के लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ती, कोई खर्चा नहीं होता। लॉन्ग पेंडिंग केसेस इन द कोर्ट अफेयर्स आर रिजॉल्व्ड एंड सेटल्ड सेटिस्फैक्टरीली। तो जो लॉन्ग पेंडिंग केसेस होते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, उनको क्या किया जाता है? उनको डिस्पोज किया जाता है। इस तरीके से सॉल्यूशन किया जाता है कि दोनों जो पार्टी होती है, ठीक है, वो दोनों सेटिस्फाई होके जाए। लोक अदालत फ्रीज the parties and witnesses from the difficulties of frequent visit to courts। लोक अदालत ये जो पार्टीज़ होती हैं इनको फ्री करता है कि उनको बार बार
कोर्ट के चक्कर ना काटने पड़े. When the settlement and agreement does not become possible, then Lok Adalat takes up the case in hand and decides the judgment that is acceptable to all the parties. The order of Lok Adalat is final order. Lok Adalat brings the end of disputes. Both the parties get justice and dispute is resolved. Money and time is saved. A permanent Lok Adalat has been established in the district of the state Gujarat by Gujarat Bar Council and Gujarat High Court Ahmedabad. There is no fee to file a case in Lok Adalat or to take any action. So this was all about Lok Adalat, and with this I end my chapter over here. Let us look into the exercises given in textbook page number 107. Exercises. Question number 1, fill in the blanks. Now there are 5 fill in the blanks is given, okay, and we will fill each one of them. I'll give you the answers for the exercises. Number 1, we have accepted dash tier structure of Panchayati Raj. कितने टायर होते हैं पंचायती राज में? 3. So 3 is your answer. Dash is appointed by the government to administrator the Gram Panchayat. It is Talati cum minister. Okay. 3rd, the administrative head of Taluka is called Taluka Development Officer, TDO. Dash is the 3rd level of local self-government. Local self-government का 3rd level कौन सा है? So it is district panchayat. 5th, it is compulsory to organize Gram Sabha at least dash in a year in area of Gram Panchayat. कितने बार ग्राम सभा आयोजित की जानी चाहिए एक साल में? सो इट इज़ ट्वाइस. साल में 2 बार आयोजित की जानी चाहिए. फाइन. नाउ लेट अस सी द आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 आंसर इन शॉर्ट. मामलतदार इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन विच कैटेगरी. ये पूछ रहा है कि मामलतदार जो होता है वो कौन से कैटेगरी का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है. तो आंसर आएगा द मामलतदार इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एट तालुका लेवल. देन सेकेंड नंबर, हु इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. हु इज़ द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. So the answer is collector is the administrative head of the district. Who is considered as an administrative head for corporation. Corporation का administrative head कौन कहलाता है? तो the municipal commissioner is considered as the administrative head of corporation. Question number 4. What percentage of women reserved members are there in corporation? कितने बताए थे? 50. Correct. 50. There are 50% of women reserved members in the corporation. 5th question. How long does the mayor hold this position? मेयर ये पोजीशन कितने समय के लिए होल्ड करता है? उसकी पोजीशन जो है कितने समय के लिए होल्ड करता है? तो द आंसर इज 2.5 years. फाइन. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3. ओके. Answer the following question in 3 or 4 sentences each. Fine. So let us see the first question. Mention the functions of Gram Panchayat. Now this is already given in your textbook. I will mark the answers in the textbook and you will copy in the notebook. Fine. आपको functions बताने हैं ग्राम पंचायत के. तो it is given on page number. See on page number 100, the topmost paragraph is starting with the function of Gram Panchayat. So these functions you have to write in your notebook. Fine, that is the answer 1 in question number 3. Question 2. What is meant by local self-government? Explain. So in this question you will explain the meaning of local self-government. Also, you have to draw the diagram given on page number 98. Fine.
So this was answer number 2. Now let us see answer number 3. What are the main functions of तलाटी कम मिनिस्टर? तलाटी या मिनिस्टर जिसे कहते हैं उसके फंक्शंस क्या हैं? सो दैट इज़ तलाटी के फंक्शंस दिए हुए हैं. वेयर इज तलाटी गिवन? इट इज़ गिवन that the functions of Talati is he administers Gram Panchayat, he collects the taxes, he works to make reports and prepares forms and keeps records of budgetary accounts. He implements the instruction of Gram Panchayat. Fine, so ये थे सारे किसके? तलाटी के. फाइन. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4. Write short notes on. So again you have to write functions of corporation. Now functions of corporation जो भी आपके नोटबुक टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं that you have to write. So go to page number 104. ओके, तो यहाँ पे आपको कॉरपोरेशन के क्या फंक्शंस हैं वो मिल जाएंगे. फाइन. सो दिस इज़ about the corporation. Sorry, go to page number 105. फंक्शंस के सेक्शन में देखो पूरे आंसर्स दिए हुए हैं. सिमिलरली ऐसे ही पॉइंट्स बना के आपको अपनी नोटबुक में लिखना है. नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स इज ऑन सोशल जस्टिस कमेटी. अ स्मॉल पैसेज इज गिवन ऑन पेज नंबर 104 above administration, urban administration. That paragraph you have to copy in your notebook. That is answer number 2 in short notes. Fine, let us go to question number 3. Role of district collector in पंचायती राज. अभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल अभी हमने पढ़ा था अबाउट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 106. रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर in Panchayati Raj. There are 4 points given that you have to jot down in your notebook. Okay, if you want you can break the sentences and make more points. Fine. तो आप ये जो 4 पॉइंट दिए हैं उसके आप 7 to 8 पॉइंट्स अपने आप बना सकते हैं. Fine. So this was the end of the exercise and end of the chapter. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड हाउ इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट पार्ट्स एंड व्हाट ईच पार्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर रोल्स एंड फंक्शंस दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. हाउ दे आर बीन फॉर्म्ड वो भी हमने पढ़ा. तो आपको सब समझ में आया होगा. इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग or you face any doubt while reading the chapter on your own, you can write in the comment box section and I'll get back to you. Okay, and I also request all of you to please subscribe the channel so that whatever videos are upcoming you won't miss any one of them. And next time when we will meet, I will bring some new concept to understand. It may be from history, geography or civics. So be ready and stay tuned. Thank you once again for watching the video.